Good evening, students. Today we will continue our remaining topic of biology class 11th. In previous topic we have studied the first kingdom classification, second kingdom, third, fourth and fifth, and who has given the adjunct classification, and that was R.H. Whittaker. And R.H. Whittaker has discovered the five kingdom classification. Why? Because still when we have to study the four kingdom classification, there was certain still mistake in that the fungi still needs a proper group or proper phylum to classify. That's why the five kingdom classification has claimed by R.H. Whittaker, and he has given the adjunct and separate group from fungi. ठीक है, उन्होंने fungi के लिए एक separate group ही बना दिया कि जो fungi होंगे उनके लिए एक अलग group होगा और वो उसमें consider करेंगे. So after that सबसे important questions ये भी है कि what is the meaning of classification and why it is required. Classification I already told you in first chapter. If you are remember that first chapter में मैंने आपको बताया था कि in our earth there is millions and trillions of species are surviving. ठीक है, millions of plants है, millions of species है, living beings है, human beings है. ठीक है, और भी आपके animals वगैरह है. तो इनको आइडेंटिफाई करना है ना, और इसलिए उनको एक ग्रुप में कंसीडर करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, जिस कारण से क्लासिफिकेशन बना, जिसमें क्लासिफिकेशन से इजीली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते थे, उनके नेचर से, उनके बिहेवियर से, उनके हैबिटेट से, उनके खाने पीने के मोड ऑफ ईटिंग, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन थे या वो किस प्रकार का जो खाना था उसको एडजस्ट करते थे, लाइक ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड मेनी मोर. सो टुडे the most important point is that we have to discuss after the five kingdom classification. We will discuss the all the five character which is considered as plantae, monera, fungi, okay, animalia and protista. We will also discuss all the things one by one, but first topic is our monera, then we have to discuss some more. So first is monera. We have to get the detailed information about the monera. If you will read in CBSE book, you will find the exact definition of monera, where it is found and what is the function. Okay, now monera is include the most primitive form of a life. जो मोनेरा जो होते हैं वो बहुत primitives होते हैं. Primitives means those cells which are made up from प्रिमिटिव, बहुत ओल्डेस्ट सेल से जो मिलकर बनते हैं. प्रिमिटिव का मतलब है यहाँ पे ओल्ड. ठीक है, जो ओल्ड होते हैं उसे हम प्रिमिटिव के नाम से जानते हैं. विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो पहले के जो ऑर्गेनिज्म होते थे, ठीक है, उससे वो निकल कर आते थे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम मोनेरा कहते हैं. यानी मोनेरा से भी पहले कोई एक और ऑर्गेनिज्म था, उनसे ये प्री मैच्योर होके, उनसे डेवलप होके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म निकल कर आए, एंड दैट इज कॉल्ड मोनेरा. मोनेरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Next we have to discuss that prokaryotic. I already told you the difference between prokaryotic and eukaryotic. Generally we know that prokaryotics means pro means primitive and karyon means nucleus, but in prokaryotes there is a lack of nucleus. In the place of nucleus there is a nucleoid. Okay, so you all have to focus on that thing. Prokaryotic are generally lack of nucleus. It means we can say that naked of nucleus. ठीक है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. In the presence of nucleus there is a nucleoid. और भी essential function जो होते हैं उनके single celled के ऊपर depend होते हैं. Now second, mostly single celled organism. Single celled organism का मतलब होता है कि they are formed by single cells. सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, जिसे हम प्रोकैरियोट्स या सिंगुलर सेल्स या हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, we have already discussed that. Unicellular means those organisms which are made up of single cell is called unicellular. Example amoeba. अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना है, उनमें सिर्फ एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं. ठीक है, वही सेल्स, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल द लाइफ एसेंशियल फंक्शन. जो भी उनके लिए जो भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो सारा का सारा एक ही सेल्स रेगुलेट करता है. सेकंड, मल्टीसेलुलर की बात करते हैं. तो मल्टीसेलुलर में इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जनरली ह्यूमन बीइंग इज द नेचर ऑफ मल्टीसेलुलर बिकॉज in human beings there is a millions and trillions of species. Okay, so prokaryotic mostly single celled होते हैं, और जो human beings होते हैं वो generally multicellulars होते हैं, जिनमें बहुत सारे cells पाए जाते हैं. Example human beings also. ठीक है, और human beings जो है वही cells जो है बहुत सारे species को तैयार करता है. Now next,
सिंगल सेल्ड विथ अ फ्यू कॉलोनियल सेल्स। कॉलोनियल सेल्स का मतलब होता है इनमें कुछ सेल्स होते हैं जो एक ही फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जिसको हम कॉलोनियल कहते हैं, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनियल। जो कॉलोनी होती है इनकी, सेल्स की कॉलोनी तैयार हो जाती है इनमें, मोनेरा में, एंड दीज आर कॉल्ड कॉलोनियल सेल्स। वी विल डिस्कस व्हेन वी स्टडी द सेल्स स्ट्रक्चर एंड mitosis meiosis, we will also study the colonial cells. Next we have to discuss the cell wall made up of peptidoglycan. Peptidoglycan is the most important part. Peptidoglycan is a second name. We know that peptidoglycan is also considered as N-acetylmurin. इसे हम N-acetylmurin के नाम से भी जानते हैं. This is the polymer of glucose and amino acid. ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, ठीक है। वी ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म पॉलीमर, मोनोमर, ओके। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जो होते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड दे फॉर्म द मैस लाइक स्ट्रक्चर। ये एक मैस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो मोनेरा में प्रेजेंट होते हैं। इफ वी टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, जनरली जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और कुछ सेल वॉल जो होते हैं वो काइटिन्स के होते हैं। हम लोग अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो मोनेरा के जो सेल वॉल होते हैं वो अमीनो एसिड्स और सुगर से मिलकर बनते हैं। ग्लाइकोन इट इज रिलेटेड टू टर्म सुगर, ठीक है। ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस मोर इलेबोरेटली। मोनेरा are found in all the types of habitats on earth. We have seen so many examples like omnipresent. Omnipresent means होता है सर्वव्यापी, जो हर एक जगह पाया जाता है। You've been taking an example is God. भगवान जो है सब तरफ होते हैं। Like amoeba, amoeba is not a god, but amoeba is Monera is found in everywhere. And what is the function and what is the importance of Monera and where it is found? I will tell you that Monera is found habitat of earth in many places. First, bottom of the oceans. Oceans के अंदर, oceans you already know that what is the meaning of oceans, rivers वगैरह, ठीक है। बॉटम ऑफ ओशन यानी ओशियंस के काफी डीप में पाए जाते हैं, बॉटम में। सेकंड, बिलो द आइसबर्ग्स। जो आइसबर्ग्स होते हैं, बड़े बड़े जो बर्फ की चादरें होती है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे उसको पलटने के बाद, तो उसमें आपको यू विल फाउंड द मोनेरा सिचुएटेड देयर, ठीक है। मोनेरा आपको वहां पर उपस्थित मिलेगा। नेक्स्ट, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मीन्स होता है कि जो भी गर्म उबलते हुए पानी है, कहीं कहीं जगह पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें जो है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो वाटर लेवल है, आपको वहां का गर्म मिलेगा। एंड देयर द मोनेरा इज आल्सो देयर, ठीक है। वहां पे भी मोनेरा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। If we're talking about the examples of organism, there inside and outside the organism, the Monera is also there. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मोनेरा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो उसमें आउटसाइड या इनसाइड में मोनेरा जो होते हैं छोटे छोटे फॉर्म्स में उनके बॉडी के अंदर होते हैं। सेकेंड, डेजर्ट। मोनेरा आर जनरली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑल्सो। डेजर्ट मीन्स जो हम लोग रेगिस्तान समझते हैं, मोनेरा आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये मैंने पहले ही बताया था, इट इज फाउंड इन एवरीवेयर एंड इट इज अ ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। इसे हम ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी, जो हर एक जगह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, on a particulate matter suspended in air. Particulate matter means most important, it is a term which is related to chemistry section. Particulate matter का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़ते हैं जनरली, दिस इज द सेशन ऑफ कोविड-19, जो कि कोरोना का जो भी संक्रमण चल रहा है वो इसका लक्षण है। लेकिन पर्टिकुलेट मैटर जो होता है, जनरली जब भी कोई इंसान स्नीच करता है, छींकता है या खांसता है, तो उसके माउथ से बहुत सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकलते हैं। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं काफी समय तक उसके आसपास के एरिया में, सराउंड में हैंग होते हैं, ठीक है, वो रुके हुए रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलेट मैटर। सेम एज इट इज मोनेरा इज आल्सो एक्ट एज अ पर्टिकुलेट मैटर। जो मोनेरा होता है वो एक पर्टिकुलेट मैटर का भी काम करते हैं, जो कि आसपास के एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द सिक्स्थ रीजन, ठीक है। वो सस्पेंडेड इन एयर। एयर का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका मोनेरा है वो एयर में भी सस्पेंड होते हैं, मतलब विच इज इजिली फाउंड इन द एयर रीजन्स आल्सो। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड the 6 basic regions where the moneras are found. हमने 6 पार्ट्स में पढ़ा कहाँ कहाँ पे मोनेरा पाया जाता है। फर्स्ट, बॉटम ऑफ द सी में आपको मिलेगा। सेकंड, आइसबर्ग में। थर्ड,
हॉट स्प्रिंग में फोर्थ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म में, अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलते हैं ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट डिजर्ट रीजन्स में, जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं, ऑन अ पर्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन एयर, इस रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ मोनेरा एंड ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर हियर। Now we come to the next point. This is the types of Monera. Generally, Monera is divided into two parts. First is Archaeobacteria and second is Eubacteria. I will tell you all the terms in a detailed manner and explain. I will everything. Okay. Archaeobacteria are generally considered the three basic principles. First is methanogens, second is halophiles, and third is thermoacidophiles. Okay, these are called the archaeobacteria. I will already told you archaeobacteria is called the ancient living fossils. आर्कियोबैक्टीरिया को हम एंशियंट लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले जमाने में जो फॉसिल्स होते थे उनके आज भी अवशेष हमें आज मिलते हैं देखने को, और वो फॉसिल्स जो है आगे के लिए काम में आते हैं। इसलिए आर्कियोबैक्टीरिया इज कंसीडर्ड एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंशियंट लिविंग बैक्टीरिया। आज भी जो एंशियंट मतलब काफी पुराना, जो कि ओल्डेस्ट होते हैं, जिसको हम प्रिमिटिव के भी नाम से जानते हैं। तो जो आपका आर्कियोबैक्टीरिया होता है वो काफी पहले यूज होता था, ठीक है, और एंशियंट फॉसिल्स भी हैं ये, जो आज के डेट में लिविंग कंडीशंस पे हमको मिलते हैं। इनके जो टाइप्स है जनरली मैथनोजेंस, हेलोफाइल्स, thermoacidophiles, we will discuss in later. Okay, now the second point is that eubacteria is divided into four parts. Mycoplasma bacteria, you all are familiar with the term mycoplasma and bacteria in 9th and 10th class also. Actinomycetes and cyanobacteria. I will tell you all the bacteria are generally different in nature, डिफरेंट इन बिहेवियर, डिफरेंट मोड ऑफ ईटिंग एंड हैबिटेट ऑल्सो, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया सेम नहीं होते हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, एक्टिनोबैक्टीरिया हो, ठीक है, या यू बैक्टीरिया हो, सबके फीचर्स अलग होते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया, ऑल आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। The most important, most of the exams, the question arises that why are the mycoplasma considered as jokers? Mycoplasma को हम jokers क्यों कहते हैं? Generally इसलिए क्योंकि mycoplasma doesn't have any proper cell wall. इनके पास proper cell wall नहीं होता है, जिस कारण से mycoplasma अपने shape को अपने ढंग से चेंज कर सकते हैं। तो अपने ढंग से अपने सेल्स को क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा कंसीडर्ड एज जोकर्स ऑफ दिस, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर्स के नाम से भी जानते हैं। सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द मोनेरा, देयर नेचर, which type of monera are considered the cells, single cells, maybe multicellular cells, are which type of cell walls are found in monera. Then we have discussed the cell wall, and next is monera where it is found, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। there are 6 reasons, है ना। next come to the point that how many types of monera, monera कितने प्रकार के होते हैं। जनरल monera consist of 2 parts, archaeobacteria and eubacteria. Archaeobacteria is divided into 3 parts, ठीक है, methanogens, halophiles, thermoacidophiles, next eubacteria also. So I think this is whatever I taught today, and this is enough. Next video I will also explain the uses and importance of archaeobacteria, their types, and eubacteria also. Till then keep revises all the things. After that I will send you the PDF file consisting all the notes and important questions also. Okay, thank you students.